Assalamualaikum. This is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmad Khan campuses and Gulistan Johor campus. How are you all? Hope you all are fine. In this video, I will explain you the contribution of modern scientists in the field of chemistry, scientific method, exercise of chapter number 1, and questions from past 10 years. And the resource which I am using here is your textbook of chemistry for class 9 and 10. Review of previous class. In the previous class, I told you about the history of chemistry and explained 3 periods: Greek period, Muslim period and modern period. And also explained you about the contribution of Muslim scientists. Do you remember the name of the Muslim scientist? Jabir ibn Hayyan, Al-Razi, Al-Biruni and Ibn Sina. Now let's come to the today's topic. Contribution of modern scientist. Robert Boyle, 1627 to 1691 AD. He described affectionately as a father of modern chemistry. He was the first to put forward the idea that chemistry should be regarded as a systematic investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge. As a result, lot of discoveries were made during later year. रॉबर्ट बॉयल को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है. In the previous lecture, in the yesterday class, I had told you about the father of alchemist. Do you remember who is the father of alchemist? Jabir ibn Hayyan. And Robert Boyle is known as the father of modern chemistry. रॉबर्ट बॉयल वो पहला शख्स था, या आप कह सकते हैं कि वो पहला इंसान था, पहला साइंटिस्ट था जिसने ये आइडिया पेश किया था कि केमिस्ट्री को जो है वो एक केमिस्ट्री को किस चीज़ से रिलेट करना चाहिए, किस चीज़ से रिगार्ड करना चाहिए कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हो किस चीज़ की, नेचर की, और उसका जो एम हो वो सिर्फ नॉलेज को प्रमोट करना हो. और इसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज भी हुई आगे बहुत सारे ईयर्स में. Here is the picture of Robert Boyle. J. Black, 1728 to 1799. He made a study of carbon dioxide. Here is the picture of J. Black. The full name of J. Black is Joseph Black. J. Priestley, 1733 to 1804. He discovered oxygen, sulfur dioxide and hydrogen chloride. The full form of J. Priestley is Joseph Priestley. Scheele. He discovered chlorine. Here is the picture of Scheele, and the full name of Scheele is Carl Wilhelm Scheele. Cavendish, 1731 to 1810. He discovered hydrogen. Here is the picture of Cavendish, and the full name of Cavendish is Henry Cavendish. Lavoisier. He discovered that oxygen constituted about 1/5 of air. Here is the picture of Lavoisier, and the full name of Lavoisier is Antoine Lavoisier. John Dalton. He made a great stride in chemistry with his atomic theory of matter. इसने क्या किया था, इसने एक थ्योरी पेश की थी मैटर की जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, और उसको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर से जो है वो जाना जाता है. The idea of atoms and molecules became the established fact, and the concept of atomic weight was also given by John Dalton. Atoms और molecules का idea और एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट भी जो है वो जॉन डाल्टन ने दिया था. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ जॉन डाल्टन.
J.J. Berzelius. He introduced the idea of symbols, formula and chemical equation to make the study more systematic. इसने किस चीज़ का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोई सिंबल हो, कंपाउंड के कोई फार्मूला हो, और जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो केमिकल इक्वेशन जो बनती है उसमें क्या सिंबल और क्या फार्मूला यूज़ होगा ताकि स्टडी जो है वो काफ़ी सिस्टमैटिक हो सके. द फुल नेम ऑफ J.J. Berzelius is Johannes Jacob Berzelius, and here is the picture of J.J. Berzelius. Mendeleev, 1824 to 1907. He discovered the periodic arrangement of elements. इसने क्या किया था? इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एक टेबल में जिसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है. Here is the picture of Mendeleev. Arrhenius, 1859 to 1927. He proposed the theory of ionization. इसने क्या किया था? इसने आयनाइजेशन की थ्योरी को प्रपोज किया था, पेश किया था. Here is the picture of Arrhenius. M. Faraday, 1791 to 1867. He gave the laws of electrolysis. इसने इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज दिए थे. आगे आपके पास एक चैप्टर है उसमें आप बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज को जो है वो पढ़ेंगे. द फुल नेम ऑफ एम फैराडे इज माइकल फैराडे. J.J. Thomson, 1856 to 1940. He discovered electrons. Here is the picture of J.J. Thomson, and the full name of J.J. Thomson is Joseph John Thomson. इसने क्या चीज़ डिस्कवर की थी? इलेक्ट्रॉन्स. E. Rutherford, 1891 to 1937. He discovered the nucleus of an atom. आगे जाके फर्दर चैप्टर्स में आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी पढ़ेंगे जिसमें इसने डिस्कवर किया था कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है. द फुल नेम ऑफ ई रदरफोर्ड इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ हिम. These are the contribution of modern scientists in the field of chemistry. Now let's come to the other topic, which is scientific approach in chemistry. Over the years, science has developed through a series of discoveries which started off as observed natural phenomena which had to be explained. This was done by using scientific method in a systematic manner. बहुत से सालों से साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज कर रही है जो कि स्टार्ट हुई है जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व करके, और उसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है. तो जो एक्सप्लेनेशन है किसी भी नेचुरल फिनोमिना की ऑब्जर्वेशन की वो की जाती है बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड. It comprises of 4 steps. Number 1, observation. Number 2, hypothesis. Number 3, theory. And number 4, scientific law. Let's talk about observation. Different people observe a phenomena in different ways. Some of us observe something very critically to extract from it a new point. हर किसी का हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का तरीका अलग होता है. ठीक है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली डीपली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और कुछ जो है वो सिंसरी ऑब्ज़र्व करते हैं. बेसिकली ऑब्जर्वेशन इज़ द बेसिक टूल फॉर एलैबोरेटिंग अ फिनोमिना, बट इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्किल. इट इज़ वन ऑफ द साइंटिफिक अप्रोचेज इन केमिस्ट्री. साइंटिफिक मेथड में जो पहला स्टेप है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. इट इज़ अ बेसिक टूल. किसी भी फिनोमिना को एलैबोरेट करने के लिए जो बेसिक टूल है वो ऑब्जर्वेशन है, बट हर पर्सन का ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा. जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करता है. कोई बहुत क्रिटिकली करता है, कोई ऊपर ऊपर से करता है. तो इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जितनी उसकी स्किल होगी उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन की जाती है. ये पहला स्टेप है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री में. आफ्टर ऑब्जर्वेशन सेकेंड स्टेप इज हाइपोथेसिस. After observation of a phenomena, scientist ponders over it and carries out relevant experiment and arrives at a possible explanation for the nature of phenomena. This explanation, which is a trial idea, is known as
हाइपोथेसिस। बेसिकली जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है किसी भी फिनोमेना की तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको उस ऑब्जर्वेशन के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद एक स्टेटमेंट पेश की जाती है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ही स्टार्ट में जब आपको पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने आपको साइंटिफिक मेथड के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी थी कि एक समझ लीजिए एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने जो है वो प्लांट ग्रो किए, तीन जगह उसने प्लांट ग्रो किया, उसमें उसने 3 डिफरेंट तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ किए, A, B एंड C, ठीक है। उसके बाद उसने ऑब्ज़र्व किया कि फर्टिलाइज़र A से कैसी ग्रोथ हो रही है, B से कैसी ग्रोथ हो रही है और C से कैसी ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल उसको A से ग्रोथ अच्छी नज़र आई तो उसने एक हाइपोथेसिस दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, एक ट्रायल आइडिया दे दिया कि फर्टिलाइज़र A इज़ बेटर दैन फर्टिलाइज़र B एंड C। तो ये एक ट्रायल आइडिया है, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। इट मे और मे नॉट अंडरगो अ चेंज एज अ रिजल्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मोर नॉलेज एंड फैक्ट्स। ये आगे जाके आपको सही भी साबित हो सकता है या ये गलत भी साबित हो सकता है, बेस करता है आगे जब उसकी फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज थ्योरी। जब साइंटिस्ट हाइपोथेसिस जनरेट कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने अदर वर्कर्स उसी जिस फील्ड में और भी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे और भी साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, उन वर्कर्स को वो हाइपोथेसिस कन्वे करते हैं फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। When the hypothesis is supported by a large number of different types of observation and experiments by other workers on same phenomena, then a theory is developed. अगर वो जो हाइपोथेसिस आपने प्रपोज किया है उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी सपोर्टेंस बढ़ जाए, ज़्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट करें बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तब क्या होती है, तब बन जाती है थ्योरी। बेसिकली थ्योरी को आप कह सकते हैं साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया और प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना। आफ्टर डेवलपिंग अ थ्योरी, law will be created. And what is scientific law? When a theory which is tested again and again and is found fit according to the facts giving valued predictions is called as scientific law or principle. जब एक थ्योरी प्रपोज कर दी, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस आया, हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी आई, उस थ्योरी को भी बार बार टेस्ट किया जाता है और अब अगेन एंड अगेन टेस्ट करने के बाद वो फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर फिट है तो फिर उसको जो है वो शक्ल दे दी जाती है एक लॉ की, एक साइंटिफिक लॉ की। However, not all hypotheses and theories pass successfully to become scientific laws. Some may sound very convincing and be supported by mathematical calculation, but are very difficult to prove experimentally. अब ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी हाइपोथेसिस और थ्योरीज आएँ वो सक्सेसफुली लॉ बन जाएँ, ठीक है। कुछ जो हैं वो बन भी जाती हैं और कुछ जो है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे सपोर्ट करी होती हैं, बट एक्सपेरिमेंटली वो फेल हो रही होती हैं। This is invariably due to the material under investigation or the lack of suitable working equipments. ये इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है कि जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो काफ़ी चेंज है, या किसी इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उनकी कमी की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। इसकी एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है जो कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, जो कि अभी तक प्रूव नहीं हुआ और जो प्रूव नहीं हुआ है और अभी तक उसको एवोगैड्रोस लॉ के तहत जो है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। एवोगैड्रो के बारे में हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। इन द सेकंड चैप्टर एवोगैड्रो की डिटेल मौजूद है, मैं उसमें आपको जाके जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ाऊँगी। I hope you all have cleared with the contribution of modern scientists and scientific method. If you have any query here, you can ask me anytime in the comment section. I will explain it to you again. Now come to the exercise. Here your first chapter is finished. Now come to the exercise which is present on page number 9 in your book. Fill in the blanks. The early Greeks believed that everything in the universe was made up of 4 elements. ये मैंने आपको कल की क्लास में ही पढ़ाया है ग्रीक पीरियड में कि
ग्रीक का क्या बिलीफ था कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो 4 एलिमेंट्स से बनी हैं, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर. Al-Razi divided chemical substance on the basis of their Al-Razi contribution में मैंने आपको पढ़ाया था on the basis of their origins. Dash is the branch of chemistry which deals with the carbon compound. कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो सिर्फ कार्बन कंपाउंड से डील कर रही होती है? Organic chemistry. Biochemistry is the backbone of medical sciences. PVC, which is a plastic, is the short name for polyvinyl chloride. Oxygen was discovered by, अभी मैंने आपको बताया, J. Priestley. The best disinfectant is chlorine. The periodic arrangement was the result of Mendeleev work. These are the fill in the blanks which is present in your book at page number 9. Now come to the question answers of your book. Write a note on the historical development of chemistry with special mentioning of the contribution of Muslim scientists in the field of chemistry. इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इसके अंदर आप जो है मुस्लिम साइंटिस्ट की contribution लिखेंगे. Define chemistry and describe its importance. Chemistry की definition and importance of chemistry इसके अंदर आप लिखेंगे. What important role plays chemistry plays in the society. Chemistry and society मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, वो इसके अंदर आएगा. Name the different branches of chemistry and define them. कितनी ब्रांचेस आपके पास केमिस्ट्री की? 9 ब्रांचेस. 9 ब्रांचेस के आप नेम देंगे और उनको डिफाइन करेंगे. What do you mean by the scientific approach in chemistry? How will you differentiate between hypothesis and theory? साइंटिफिक अप्रोच मैंने अभी आपको पढ़ाया और डिफरेंस भी पूछ रहे हैं कि हाइपोथेसिस और थ्योरी का डिफरेंस भी आई होप सो आपके समझ में आ गया होगा. एंड व्हाट इज़ साइंटिफिक लॉ. इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैं नोट्स आप लोग को सेंड करूँगी, आपको अटैच करूँगी, जो कि आपको आपके एडमोडो पे और आपके गूगल क्लासरूम में दोनों में आपको मिलेगा. फोल्डर के अंदर चैप्टर नंबर 1 के नोट्स अटैच होंगे और उस नोट्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट ईयर क्वेश्चन, जो पिछले 10 साल से पेपर में आ रहे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. उस क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दीज आर, राइट द नेम ऑफ 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. 2009, 2011, 2017 और 2018 में आया हुआ है. यहाँ पे इन्होंने देखा सिर्फ बोला है कि आपको सिर्फ नेम्स लिखने हैं किसी भी 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के. Name 3 scientists of modern period and write 1 contribution each of in the field of chemistry. 3 साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं आपको. कौन से साइंटिस्ट के? मॉडर्न पीरियड साइंटिस्ट के, और उनका एक कंट्रीब्यूशन लिखना है केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर. डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. राइट 1 contribution of each of the following scientists towards the development of chemistry. J.J. Thomson, Mendeleev, Rutherford, J. Priestley, J.J. Berzelius, John Dalton. ये 6 आपके पास मॉडर्न साइंटिस्ट आए हुए जिनकी कंट्रीब्यूशन लिखने के लिए उन्होंने बोला हुआ है. राइट 3 sentences on the importance of chemistry. Write 3 significant reasons for studying chemistry. What is scientific method? Define hypothesis and theory. Chemistry and human society go hand in hand. Write 4 arguments in support of this statement. ये सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, इसमें आपको केमिस्ट्री एंड सोसाइटी के बारे में लिखना है. राइट 1 contribution of any 4 Muslim scientists in the field of chemistry. आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड दीज आर ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. इस चैप्टर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते. ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक सवाल को कई तरीके से भी पूछ सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन रीड करके इस चीज़ की आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपने आंसर क्या करना है. Now I hope all the things is clear to you. Chapter number 1 is finished here. If you have any problem, you can ask me. I will tell you again. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.